Hello everybody, welcome to the Math Professor channel. So again we got some audio issues, so I recorded the lecture, but due to audio issues I wasn't able to record it properly. Now audio is not clear, so I have to repeat it again. So we have left at homomorphism part, right? होमोमॉर्फिज्म हमने ख़त्म कर दिया था. होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक. आइसोमॉर्फिज्म हमने लास्ट किया था जहाँ हम जी से जी डैश मैप बनाते हैं, जो कि एफ़ क्या होनी चाहिए वहाँ पे होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए प्लस 1 1 प्लस 1 2. ये तीन चीज़ें हों तो हम कहेंगे कि एफ़ जो है आपकी क्या थी, आइसोमॉर्फिज्म थी. क्या थी, आइसोमॉर्फिज्म, राइट. और ये चीज़ थी. उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ पे यहाँ ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, मतलब एलिमेंट वाइज, ठीक है. पर हो सकता है स्ट्रक्चर्स पर स्ट्रक्चर सेम हो, जैसे Z4 है और ये बात करो, देखो अगर इनकी शक्ल की बात करोगे तो आपको अलग अलग दिखेगी, बट दोनों का जो ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वो सेम है. क्योंकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं. कैसे, इसमें भी एक एलिमेंट हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर का है, ठीक है. दो एलिमेंट एक एलिमेंट दो ऑर्डर का और चार एलिमेंट का दो एलिमेंट है ना. इसमें भी एक ऑर्डर का एक एलिमेंट, दो ऑर्डर का एक एलिमेंट, और ये दोनों चार चार ऑर्डर के, ठीक है. दो एलिमेंट चार ऑर्डर के, राइट. तो सॉरी, दो एलिमेंट चार ऑर्डर के, दो एलिमेंट चार ऑर्डर के है. तो स्ट्रक्चर, जो ग्रुप स्ट्रक्चर इनका, वो उस हिसाब से ये सेम है. तो यही से थोड़ा हम एक्सटेंड आगे मूव करते हैं और नाम आता है आगे ऑटोमॉर्फिज्म का. किसका नाम आता है, ऑटोमॉर्फिज्म का, ठीक है. इस लेक्चर में हम ऑटोमॉर्फिज्म प्लस हम इनर मॉर्फिज्म ख़त्म करेंगे, एंड देन वी विल स्टेप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स, ओके. और कुछ रिजल्ट्स देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म एंड इनर मॉर्फिज्म, ठीक है. and how they will help you to identify some things like what could be the order of G upon ZG, okay. What could be the possible orders, and questions like that, okay. If a particular group like G1 cross E1, is this a normal subgroup or not, okay. So question like that we will get to know in this lecture, okay. So let's start with the automorphism. So it is a kind of isomorphism, but the difference is that the it is a mapping from G to itself. Earlier in isomorphism we were saying it is from G to G dash, but now we are saying it's from G to itself. So this is the first distinction, and the rest of the things are same. F must be homomorphism, second F must be on 1, third F must be on 2. So rest of the things are same, right. So the only change is that here in place of G dash we have G. So mapping is from G to itself, right. And if such a mapping satisfies these three conditions, then we say this is an automorphism, right. So let's step into the examples, like F from Z20 to Z20, okay. So that means indirectly we are talking about the isomorphism, right, like number of isomorphisms from Z20 to Z20, right. So number of automorphisms from Z20 to Z20, you have to calculate these, right. So this is what our question is. So now कितनी ऑटोमॉर्फिज्म होती हैं, देखो ऑटोमॉर्फिज्म और यहाँ आइसोमॉर्फिज्म सेम ही चीज़ है, बस जी टू जी सेम जा रहे हो. तो हमें पता है एम टू एम हमने किया है जब हम आइसोमॉर्फिज्म में बात करी थी. तो कितने होते हैं, 520, दैट इज़ 7, और 8, you can calculate it, right. So 20, 4 by 5, and 1 by 2, so 2 4 या 8, so 8. so और वो क्या होती हैं इसमें हमें पता है, ZM में ZN टू ZM में जाते हैं तो ये होता है A का जो ऑर्डर होता है, ठीक है. A जो है इसका A, और जो M है, ठीक है, इसका जो GCD है वो 1 होना चाहिए, ठीक है. तो कितने A ऐसे मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं 8. वो लिखते जाओ आप, f of x equals to 1x, f of is 1 2x equal to 3x, f of 3x is equals to 5x, f of 4x is equals to 7x, f of 5x is equals to
9x, then f of 6x is equals to 11x, then f of 7x is equals to 13x. not 5x will not be there, right? because 5 और 20 का GCD ठीक है वो कुछ अलग आएगा, ठीक है 5 आएगा, वो 4 5 6 और f7 विल बी 17x, right? और and f8x will be 19x. so these will be the homomorphism which are 1 1 and on 2. so these will be the automorphisms, right? now they can distort the question, like instead of giving directly zm to zm, they can ask you like what are the total number of automorphisms from u27 to u27. question can be asked like this only as well, right? so we know we do not have to worry about it. we know u27 is nothing but 3 raised to power 3. this is isomorphic to z 3 raised to power 3 minus 3 raised to power 3 minus 1, that is 27 minus 9, that is 18. okay, so the now question becomes f from z18 to z18. so number of total number of automorphism from z18 to z18 is nothing but 518, right? and 518 you have to calculate, so that means it comes out to be 6. okay, so this is how we can calculate. They can distort a question in some way. now next we can move to find the number of automorphism from z to z, and we have studied this earlier. we know the only possible onto maps from z to z are these two, right? there are however infinite number of homomorphisms, but this is the only these are the only automorphisms. is onto homomorphisms, and these are 1 1 2, right? so the only two automorphisms in from z to z, right? so next let's move uh, to the next thing that you must keep in mind. we have come at a new notation, okay, जो कि लिखी जाती है जैसे कैसे out of z4. what does this mean? this mean set of all automorphism from fz4 to z4. so this is a shorthand notation. so whenever you see such a notation like out of z4, that means they are asking you to find all the automorphisms from z4 to z4. so we know that it will be 2. so what those will be? f1 x equals to 1x, and second will be f2x will be 3x. so only two automorphisms will be there from z4 to z4, and this set will contain f1 and f2. clear? and this is, we know that this will be isomorphic to z2, right? is it clear? can you do it now? right? now let's move to a bit further, and now let's check what this set isomorphic to, which sorry, so let's see the set of automorphisms comes out to be, let's see what could it be. okay, so we know that the number of automorphisms from z10 to z10 is 510, that is 4, right? so that means automorphism of z10 so will be f1 f2 f3 and f4, and we know that what these could be. f1 will be 1x, f2 will be 3x, this will be 7x, and this will be 9x. so these will be the exact mappings which will be automorphic, right? now let's see that. so you see the order. if I talk about order of auto z10, so you see it is 4, but now we know the if a group of if, and we know that this forms a group as well. you can prove this. okay, so we know that this is a group of order 4. now we know the only group of order 4 that are possible are z2 cross z2 and z4,
right? Now let auto of Z10 इज आइसोमॉर्फिक टू Z4. अगर Z4 के आइसोमॉर्फिक है दैट मीन्स हमें एक एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर 4 होगा. नाउ लेट अस सी F स्केयर, F2 स्केयर, F1 तो आइडेंटिटी है सो इट्स ऑर्डर विल बी 1, F2 स्केयर दैट इज F2 ऑफ X, right? So we will have F2 of X is 3x. Again when you apply you will have 9x. You are in you are in Z10, right? So this will not affect. Again you have to apply F2 raised to power, you can again multiply it F2 cube again, so you will have F2 and 27, so you will have 27x. Again you have to divide it by 10, you will have 20, so you will have 7x, right? Now again when you multiply by F2 you will have 21x, and when you divide by 10 remainder will be 1x. So F2 raised to power 4 is 1x, right? So in Z10 what we observed that we got an element whose order is 4, and we know in Z2 cross Z2 we do not have an element of order 4, so that means auto of Z10 is isomorphic to nothing but Z4. Clear? So this is how we will do the analysis on automorphism. Okay, similar examples you can do, like you can try auto of Z12. Again we know that number of automorphism from Z12 to Z12 is 512, right? 512 again 4, so what these could be? F1, F2, F3, F4, right? So F1 will be of 1x, F2 will be not 2 3 4 5 5x, this will be 7x, and this will be 11x. So these will be the automorphisms from Z12 to Z12. Now again you have to check the order. Okay, again you have to check the order of each element. Say this is element of order 1. Again F2 square, this will be 25, and when you divide by 12 you again will get 1, so that means F2 square is 1. F3 square, 27 7 is 49, and when you divide it by 12 again you will have remainder 1, so this is again F4 square, again you will have 11 121, and when divided by 20 121 again you will have remainder 1. So each element except the identity has of the order 2, and we know that these are 4 elements, so it will be either isomorphic to Z4 or Z2 cross Z2, right? Now these elements, in these elements only one element of order 1 and other are of order 2, so this scenario is only possible when this group of order 4 is isomorphic to Z2 cross Z2. So that means odd of Z12 is isomorphic to Z2 cross Z2. So this is how we will do the analysis on this set, right? Now I am giving you a direct formula of it. If you have asked that what could be the automorphism of Zn, so you have to do nothing, you have to just write that this is isomorphic to Un. Why so? You just let us just see. So what will be Z12? So this is U12. U12 means U3 into 4, right? So U3 into 4, that means you can separate these out because GCD is 1, so U3 is matlab Z2, right? And this is Z4 that is again Z2. So this is Z2 cross Z2, that is what we found here. And earlier we I think we have discussed Z10, right? So it was Z10. Okay, so let us check Z10. So let's check Z10. Z10 will be isomorphic to, using the formula it will be isomorphic to U10. U10 is nothing but U2 into 5, right? So again U2 into U5, so again this is nothing but Z4, right? So from here we can conclude that Z10 is isomorphic to Z4. Okay, so this is a direct formula that we have. Okay, now next let's move to the next result. What is the automorphism of Z? So we know that we have calculated earlier, the only two automorphism will come here, these two, so this is isomorphic to Z2. So the result came that if G is infinite cyclic group,
then ot of G is equals to is isomorphic to Z2, is isomorphic to Z2. Again, clear? So because we know that if G is infinite cyclic group, then it is nothing but Z. Okay, so and ot of Z is Z2. Okay, clear? Next, again, what you can do is, what will be the automorphism of 2Z? Again, only two mapping will come here, minus 2Z and minus 2x and plus 2x. This will be the automorphism, right? And this again will isomorphic to Z2. Again, this is infinite, right? Yes. Plus it is cyclic, yes. So we know that the only automorphism that are possible are Z2, of the order Z2, right? Now what else we have concluded from here, that it is quite possible that automorphism of G1, okay, from these two examples we have observed that automorphism of G1 is equals to, if automorphism of G1 is equal to automorphism of G2, this does not imply G1 equal to G2. Clear? This is clearly clear implication from here. Clear? You can do that. Alright, another example, if you want to check, then you can, what you can do, you can take automorphism of Z10. We have concluded that it is Z4, right? And again, automorphism of Z5, this is isomorphic to U5, and U5 is nothing but Z4. Now you see automorphism of Z10 and automorphism Z5 is equals to Z4. Okay, so here we have equality, but they are not equal, right? So we can easily claim that if automorphism of G1 is equals to, is isomorphic to automorphism of G2, that does not imply that G1 is equal to G2, right? You can do it. Now another distinction, or I would say another type of question that can be made from the given information is that it can be asked like, what are the find the number of find the all homomorphism from f of ot of Z to ot of Z10. This can be asked, but we know that ot of Z is nothing but Z2 and ot of Z10 is nothing but Z4. And homomorphism, if I am talking about homomorphism, then how many homomorphism are from Zm to Zn are nothing but GCD of 4 and 2, that is 2. This is what we have done. So the question can be distorted in this way. Okay, instead of giving directly Z2 and Z4, it can be distorted in this way. Okay, and it can be more distorted, like it can be asked, okay, like find the order of ot of Z10. Okay, or f of ot of Z10 to ot of Z10. Evaluate this. Okay, so this can be asked, right? So what we will do, we know that ot of Z10 is nothing but Z4, right? And ot of Z4, if we talk about the Z4, then it is Z2. So we will have f of Z2 to Z2, right? And number of automorphism, so number of homomorphism or automorphism from Z2 to Z2 are what? Number of automorphisms from Z2 to Z2 कितनी होती हैं? 5 2, that is 1. Okay, so that means order of Z10 is nothing but 1. Okay, because ot of something is means ot of G means f from G to G, so that means this ot. So here you must notice that this here are 3 ot we are using, but when mapping we have created a mapping, it is only 2 here. Okay, because this is nothing but ot of G. Okay, so automatically when we write here to here, then one ot automatically come, and that is nothing but this one. Okay, so you can write, it can be asked and you can rewrite it in this form, so that it becomes easier for you to solve it, right? I think अब आप कर लेंगे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तो वन मोर फॉर्मूला आई वांट टू गिव यू, दैट इज, अगर ऐसे है ऑट ऑफ जेड पी अप टू सो ऑन
n टाइम्स जेड पी। अगर ऐसा है तो सो ये विल बी, दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू जेड एल एंड जेड पी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो कि किसके आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं डायरेक्टली पूछ लूँ कि भाई बताओ ये किसके आइसोमॉर्फिक है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेड एल एन टू जेड पी क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, और इसका ऑर्डर आपको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, 2 जो भी आगे फील्ड है पावर n -1 2 रेस पावर 2 n -2 इसके बाद से मतलब पावर में कम कर दो। ठीक है, बस यही आएंगी दो, तो ये कितना है, 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 2 गए तो 2, तो 6। तो इसका मतलब जो इसका आएगा ऑर्डर वो आएगा 6। अब 6 ऑर्डर के 2 ही पॉसिबल हैं, वो आप कर सकते हो बाकी सारा काम। ठीक है, तो ऐसे करना है आपने, अगर ऐसा इसका पूछ लिया तो। ठीक है, एक जो नई टाइप का पूछता है, कई बार ऐसे पूछ लेता है, फाइंड आउट ऑफ K4। ठीक है, तो जो K4 ग्रुप होता है वो कुछ ऐसे दिखता है, E A B एंड A B, इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो अब ऑट इसकी पूछ रहा है तो इसका मतलब F फ्रॉम K2 टू K2 पूछ रहा है वो, है ना। अब K2 देखो फंक्शन कैसे बनेगी, हो सकता है देखो F1 में बना रहा हूँ कैसे, E टू E। ठीक है, बस मैंने कॉम्बिनेशन ही बनाने, A कहाँ जा रहा है A पे, B कहाँ जा रहा है B पे, और A B कहाँ जा रहा है A B पे। F1 बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। अब F2 अब चेंज करते जाओ, बस F1 ये A पे, और ये A कहाँ जा रहा है मान लो B पे, B कहाँ जा रहा है A पे, और A B कहाँ जा रहा है A B पे। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे घुमाते जाओ इनको आप। ठीक है, ऐसे इसको चेंज करते जाओ। ठीक है, एक तो फिक्स रहेगा, ये फिक्स ही रहेगा, मतलब इसकी परमुटेशन देखनी है, तो 3 है तो कितनी होंगी, ठीक है 6। ठीक है, कितनी परमुटेशन होगी 6, तो ये कितने बनेंगे F6। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख नहीं रहा। ठीक है, तो 6 परमुटेशन इसकी बन जाएंगी, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि जो ऑट ऑफ ये आएगा आपके पास, ऑट ऑफ Z2 क्रॉस Z2। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, इसका ऑर्डर जो है वो तो 6 है, इसकी ऑर्डर की बात करूँगा वो तो 6 है। अब ये तो Z6 हो सकता है या फिर S3, ये 2 ही पॉसिबल हैं। ठीक है, ये 2 ही पॉसिबल हैं। तो जब आप इसको, जैसे हमने यहाँ या स्टार्टिंग में हमने किया था एफ स्क्वेयर ऐसे करके, जब तो अब यहाँ जब आप ऑर्डर निकालते हैं तब आप देखते हैं दिस इज़ नथिंग बट आइसोमॉर्फिक टू S3। ठीक है, और वैसे ही जब आप ऑट ऑफ K4 निकालते हैं दैट विल ऑल्सो बी आइसोमॉर्फिक टू S3। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट्स कुछ और हैं हमारे पास, जैसे ऑर्डर ऑफ, अगर ऑटो मैंने DN निकालना, डिहाइड्रल ग्रुप का निकालना है, ग्रेटर देन थी, तो क्या होता है N/N, डायरेक्टली कर सकते हो। अगर ऑट पूछता है वो किसकी, Z2 क्रॉस Z2 की, सो दिस इज़ नथिंग बट S3। ठीक है, अगर ऑट पूछता है वो किसकी, K4 की, देन इट इज़ ऑल्सो S3। ठीक है, और फॉर्मूला इसके लिए ये है कि ऑट ऑफ जो SN होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ SN जो होता है, ऑट ऑफ SN वो होता है N फैक्टोरियल। वो क्या होता है N फैक्टोरियल। अगर और ऑट ऑफ SN जो होता है वो होता है SN, खुद ही आ जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन इस तो हैं, SN में क्या है, कॉम्बिनेशन परमुटेशन हैं इधर उधर, तो परमुटेशन कितनी होंगी SN की, SN नहीं होंगे, N फैक्टोरियल तो वो सेम ही आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ रिजल्ट जो आप याद रख सकते हैं, दैट कैन बी हेल्पफुल टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, फ्रॉम अ गिवन सेट टू इटसेल्फ। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, वन थिंग इज़ वेरी मच क्लियर दैट इट विल बी एन होमोमॉर्फिज्म, राइट। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसमें देखो इस डिफाइन कैसे किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, हमने कोई एलिमेंट लेना होता है G से, एक एलिमेंट ले लिया G से, और A मैपिंग, कोई मैपिंग बना दी हमने। कैसे, अब मैपिंग बनाने का तरीका, अब मैपिंग F फ्रॉम G टू G, ये चीज़ तो दोनों में, जैसे ये ऑटोमॉर्फिज्म में थी, यहाँ भी ऑटोमॉर्फिज्म तो है ही ना वो, तो ऑटोमॉर्फिज्म मतलब वो F G टू G होगा और बाकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, 3 जो प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म है 1 1 और 2। बस एक जो चीज़ नहीं है वो ये कि मैपिंग F G टू G, ठीक है, इसको इज़ डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड करने का तरीका है, T ऑफ ए एक्स कैसे डिफाइन होगा, AX A इनवर्स। ठीक है, एज इसको कहते हो आप, इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इसको कहते हो आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है,
अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म है तो बाकी चीज़ें तो वही हैं, ठीक है। की ऑटोमॉर्फिज्म तो है नाम से ही वैसे तो क्लियर। अब ऑटोमॉर्फिज्म तो ऑटोमॉर्फिज्म है तो इसके लिए प्रूव क्या करना पड़ेगा कि ये पहले तो ये होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है और 2 है, यही काम होते हैं। तो वो हमारा वही काम है। नेक्स्ट हम ये बताना शो दैट, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, शो दैट टी ए फ्रॉम जी टू जी कैसे डिफाइन है, डिफाइंड बाय टी ए एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स ए इनवर्स, ऐसे डिफाइन करते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज for all x belongs to G is automorphism, is ऑटोमॉर्फिज्म। ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो कैसे बताएंगे, पहले बताएंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है, राइट। होमोमॉर्फिज्म के लिए देखो काम नहीं है हमने बोलना, डेफिनेशन क्या है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, टी ए ऑफ एक्स वाई निकालूँ मैं तो क्या आना चाहिए, टी ए ऑफ एक्स एंड टी ए ऑफ वाई। ये हमारा मेन मकसद हमारा ये निकालना है। अब मैं बस उसी काम करना शुरू कर दूँगा, सेम काम करना है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं अब कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। लेट एक मान लिया मैंने एक एलिमेंट एक्स उठा लिया जी से, ठीक है, काम हमें समझ आ गया क्या है, और एक वाई उठा लिया जी से, 2 एलिमेंट उठा लिए, उठा सकता हूँ 2 एलिमेंट ना। अब मुझे देखना है टी ए ऑफ एक्स वाई क्या आ रहा है, कैसे डिफाइन होगा, ए एक्स वाई ए इनवर्स, ठीक है। अब ए एक्स यहाँ ई डाल सकता हूँ अंदर, कोई इशू नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, कोई इशू नहीं है, कर सकते हो। पर इस ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इनवर्स ए वाई ए इनवर्स लिख सकता हूँ। अब इसको इकट्ठा कर दो, ये इकट्ठा कर दो, ये इकट्ठा कर दो, क्या बन गया, ये क्या है टी ए एक्स, ये क्या है टी ए वाई। तो टी ए एक्स वाई किसके बराबर आ गया, टी ए एक्स एंड टी ए वाई, यही है बताती है होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन यही है, ठीक है। एक चीज़ तो प्रूव होगी। अब सेकंड हमने बताना है कि जो टी ए है इज़ 1 1 एंड 1 2, ठीक है। अब ये बताने के बजाय आप ये बता दो कि भाई इन्वर्स मैप एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, 1 1 1 2। आप ये बता दो इन्वर्स पे अगर इन्वर्स एग्जिस्ट, ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया तो 1 1 1 2 है, बस बात खत्म उधर से ही, ठीक है। तो करना क्या है, करना कैसे है वो देखो, हमें पता है टी ए एक्स कैसे डिफाइन है, ए एक्स ए इनवर्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। और ए भी कहाँ से आ रहा है, जी से, ऐसे ही है ना। यहाँ से हमें पता है ए, देखो ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी को। पक्की बात है कि अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी जी में होगा, प्रॉपर्टी है। देन अब हमने यही बोला, देखो ये सभी एक्स बिलोंग्स टू जी और सभी ए, अगर ए जी को बिलोंग तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट है ना। तो ये तो सभी के लिए ट्रू है कि अगर ए के लिए मिल रही तो ए इनवर्स के लिए भी, क्योंकि ए भी तो जी का एलिमेंट ही है तो ए इनवर्स भी तो है। तो इसका मतलब पक्की बात है ये भी मिल रहा होगा, सॉरी टी ए इनवर्स एक्स भी मिलेगा। क्या कैसे डिफाइन होगा, ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स इनवर्स, दैट मीन्स ए इनवर्स एक्स ए, यही आएगा ना। अगर टी ए इनवर्स एक्स आइडेंटिटी आ गया तो बात खत्म है। और आइडेंटिटी क्या है इस केस में, टी ई एक्स, यही आइडेंटिटी होती है। अब देखो क्या आएगा, टी ए इनवर्स एक्स कितना आएगा, ए इनवर्स एक्स ए, और जब ये निकालोगे आप तो ये कितना आएगा, ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स, ठीक। अब डाल दोगे क्या, एक्स ई और ई, तो ये कितना बनेगा एक्स, ये क्या बनेगा एक्स। और देखो टी ई एक्स क्या होता है, टी ई, देखो इसको ऐसे लिखो, ई इसे ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों एक ही चीज़, आप ऐसे भी लिख लो वैसे देखो, ए और ई इनवर्स सेम ही आते हैं ना, ए आइडेंटिटी खुद का इनवर्स हो तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया, ये बन गया टी ई एक्स, तो टी ए और टी ए इनवर्स एक्स, अगर मैं ये दोनों किए तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो कब होता है ए टी ए मैप और उसका इनवर्स आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है उस मैप का, ठीक है। इसका मतलब टी ए इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टी ए होल इनवर्स टी ई एक्स। अब ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये तो फ़र्क डालेगा नहीं, इसका मतलब टी ए इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टी ए होल इनवर्स, तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब
A इनवर्स सिंस A इनवर्स बिलोंग्स टू G, देन अगर A इनवर्स बिलोंग कर रहा है तो T A इनवर्स एग्जिस्ट कर गया अगर A इनवर्स के लिए है। इसका मतलब और यहाँ से ये अप्लाई हो रहा है कि T A इनवर्स इज इक्वल्स टू T A इनवर्स इज एग्जिस्ट, सॉरी या एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इनवर्स मैपिंग क्या कर रही है, T ऑफ A एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज इनवर्स मैपिंग एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि T क्या T ये क्या बन गया 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, और होमोमॉर्फिज्म तो था ही, तो क्या बन गया, तो कंप्लीट ही क्या बन गया, होमोमॉर्फिज्म तो पहले था ही, तो इसका मतलब टी ए क्या बन गया आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हम यहाँ से ये इम्प्लाई कर सकते हैं दैट एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज या एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हम यहाँ से ये क्लेम कर सकते हैं। क्लियर ना। एक और चीज़ अब नेक्स्ट टर्म जो है इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि सेट ऑफ, जैसे ऊपर सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म को हम आउट ऑफ जी लिख रहे थे ना, ठीक है, अब वहीं वैसे ही सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी forms a group with respect to mapping कंपोजिशन मैपिंग के साथ अगर मैं सेट ऑफ सभी इनर ऑटोमॉर्फिज्म को इकट्ठा कर दूँ तो वो क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं INMG, ऐसे डिनोट करते हैं इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अब ठीक, अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो काम आएंगे। इसका मतलब इसको थोड़ा इस ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ऑफ जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू इज़ नथिंग बट, इसमें सारी क्या आ जाती हैं आपकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा हूँ कि जो इन ऑफ जी है वो ये चीज़ है। ठीक है, अब मैं एक थोड़ा सा काम करता हूँ, मैं कुछ रिजल्ट्स यहाँ से कुछ रिजल्ट्स बनाएंगे जो कि काम आएंगे आगे बहुत क्वेश्चन हेल्प को सॉल्व करने में। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक मैप बनाता हूँ। ठीक है, मैंने मुझे पता है एफ़ फ्रॉम जी टू जी। ठीक है, एफ़ या टी ले लेता हूँ। ठीक है, टी फ्रॉम जी टू जी, तो टी ऑफ ए के एक्स क्या होता है, ए एक्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, ऐसे बनते हैं। ठीक है, मैंने एक फंक्शन मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया फाई कैसे डिफाइन किया, जी टू इन ऑफ जी, ये मैंने डिफाइन कर दिया, फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। और कैसे डिफाइन किया, फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू टी ऑफ ए, ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो, और टी ऑफ ए का तो मुझे पता है टी ऑफ ए कैसे डिफाइन होता है, ऐसे। अब देखो यहीं से हमें पता लगता है कि 1 1 ऑन 2 तो है, क्यों, सॉरी 1 1 से ये ऑन 2 तो है, क्यों, क्योंकि देखो और पहले हम ऑन 2 पे चर्चा कर लेते हैं। देखो पहले होमोमॉर्फिज्म है ये, चलो अगर ऑन 2 के बाद में अगर होमोमॉर्फिज्म है ये क्यों है, ज़रूर है, क्यों, क्योंकि क्या होना चाहिए, फाई ऑफ ए बी क्या आना चाहिए, फाई ऑफ बी आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, तो फाई ऑफ ए बी का क्या मतलब हो, टी ऑफ ए बी का क्या मतलब है, ये अभी आप करके आए हो, टी ऑफ ए बी का क्या मतलब है, टी ऑफ ए बी का मतलब है ए बी एक्स ए बी इनवर्स, यही मतलब है। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है,
फाई ऑफ ए बी इन जी, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ करूँगा तो ए बी एक्स, ये आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं कैसे लिखूँगा, मुझे चाहिए क्या, पहले मुझे देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये फाई ऑफ ए, मतलब ये आगे टी ऑफ ए एक्स आ जाए और टी ऑफ बी एक्स आ जाए, मतलब ए एक्स ए इनवर्स आ जाए और बी एक्स बी इनवर्स आ जाए, ऐसा ऐसा आना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं आता है कि नहीं आता, ठीक है। और ये क्या होगा आपके पास, हाँ चलो ठीक है, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक, ठीक है। फाई ऑफ ए टी ए डिफाइन कर दिया, और टी ऑफ ए आ गया ऐसे, फाई ऑफ टी फाई ऑफ बी, फाई ऑफ ए 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 बी, ठीक है। फाई ऑफ ए बी, ठीक है। अरे इसको ऐसे, यहाँ गलती लिख दिया ना, इसको ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे कैसे होगा, फाई ऑफ ए बी तो नीचे आएगा ना, ऐसे डिफाइन करो इसको, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फाई ऑफ ए बी कितना आएगा आपके पास फाई ऑफ ए बी कितना आएगा, फाई ऑफ वही जो डिफाइन किया है टी ऑफ ए बी, ठीक है। तो टी ऑफ ए बी कितना होगा, ए बी एक्स ए बी इनवर्स, तो कितना आएगा, ए बी एक्स बी इनवर्स ए इनवर्स, राइट। और ये कितना आएगा, ए, ठीक है। इसको अगर मैं लिखूँ तो ये आएगा ए, ये क्या बन गया अंदर, ये बना, ये क्या बना, फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी एक्स, ऐसे बना, क्योंकि फाई ऑफ बी एक्स देखो क्या होगा, इसको अगर ओपन करूँ फाई ऑफ बी एक्स क्या होगा, बी एक्स बी इनवर्स। फिर मैं अगर फाई ऑफ ए बाहर करूँगा तो क्या आएगा, ए पहले यहाँ ए बी एक्स, राइट, एंड बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, राइट। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये कंपोजिशन ही तो है, ऑपरेशन तो ऐसे लिखते हैं इसको। तो इसका मतलब फाई ऑफ ए बी किसके बराबर आया, फाई ऑफ ए एंड फाई ऑफ बी, ठीक है, फाई ऑफ बी, ऑपरेशन कंपोजिशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब बात करेंगे कर्नल की, ठीक है। अब बात करेंगे कर्नल की, कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ टी क्या होगा, सॉरी फाई क्या होगा, कर्नल ऑफ फाई क्या होगा, देखो कर्नल ऑफ फाई क्या होगा, कर्नल ऑफ फाई निकालना है तो कैसे करेंगे, इसमें आता है वो ए सारे बिलोंग्स टू जी सच दैट, अगर फाई ऑफ ए निकालूँ तो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी किसका है, देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जी टू इन जी, तो इन जी में आइडेंटिटी क्या होता है, टी ई एक्स, यही आना चाहिए, ठीक है। तो निकालो यहाँ पे ए निकालना है मुझे, ए बिलोंग्स टू जी, फाई ए की वैल्यू आएगी टी ए एक्स इक्वल्स टू टी ई एक्स, इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, ए एक्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई एक्स ई इनवर्स, ठीक है। अब ए इसको उस तरफ ले जाओ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ऐसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे ए इनवर्स इस तरह मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा, एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब देखो ये किसकी डेफिनेशन है, ये कह रहा है ए एक्स, ये कम्यूट कर रहा है कौन, ए कम्यूट कर रहा है ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ, डेफिनेशन तो यही है, ठीक है, डेफिनेशन तो यही है, ऐसे लिखते हैं ना। तो डेफिनेशन अब इसका मतलब
ये इसका मतलब क्या है कि ए किसको बिलोंग कर रहा है, जेड ऑफ जी को। ए किसको बोले, जेड ऑफ मतलब सेंटर। सेंटर ऑफ जी को, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जो कर्नल ऑफ फाई आया वो क्या है, कुछ ही नहीं आया, वो आया सेंटर। कि सेंटर का जो भी है, सेंटर में जो भी एलिमेंट होगा वो सारे के सारे कर्नल में जाएंगे, है ना। अब ये ऑन टू मैप है, क्यों, क्या है मैप, मैप है फाई फ्रॉम जी टू इन जी। और कैसे डिफाइन है, फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू टी ऑफ ए। अब देखो फॉर ईच, अगर मान लो मैं टी बी चूज़ करता हूँ इन जी में, पक्का पीछे मुझे कोई बी बिलोंग्स टू जी मिलेगा, क्योंकि बी आ तो जी से ही रहे हैं। सच दैट क्या होगा, फाई ऑफ बी इज इक्वल्स टू टी बी। तो यही तो ऑन टू बी डेफिनेशन होती है, तो इसका मतलब ऑन टू बी है। तो अब आप एफ टी एच लगा दो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगा दो, एफ टी एच लगा दो, क्या बनेगी, होमोमॉर्फिज्म है एफ और दूसरा वो ऑन टू है। इसका मतलब क्या हुआ कि जी अपॉन कर्नल ऑफ जी जो है वो किसके बराबर होगा, इमेज ऑफ फाई, सॉरी इमेज ऑफ जी। सॉरी इमेज ऑफ फाई, जो भी इमेज ऑफ फाई होगी, फाई की जो भी इमेज आ रही है। अब फाई की इमेज आ क्या रही है वो देखते हैं हम। देखो ये कैसा ऑन टू था, ऑन टू का मतलब क्या है, फाई ऑफ जी किसके बराबर आएगा, फाई की जो इमेज आएगी उसकी किसके बराबर आएगी, इन जी ऑफ इन ऑफ जी। ऑन टू यही है ना, क्योंकि मैपिंग कहाँ से कहाँ है, जी से इन ऑफ जी। अगर मैपिंग ऑन टू है इसका मतलब फाई ऑफ जी किसके बराबर आ रहा है, इन ऑफ जी के बराबर। क्लियर, इसका मतलब। और कर्नल किसके बराबर है, कर्नल है सेंटर के बराबर। दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू इन ऑफ जी। तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट है जो काम आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव किया, हमने किया प्रूफ यहाँ से कि अगर इन जी निकालना है, मुझे इन जी निकालना है, तो ये कुछ नहीं है, ये आइसोमॉर्फिक होगा आइसोमॉर्फिक होगा जी अपॉन सेंटर ऑफ जी, ठीक है। ये ऐसे होगा, क्लियर। तो ऐसे करना है। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा इसका भी आपको दिखेगा। देखो जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कौन सा ऑर्डर है, जैसे वो बोलेगा, जैसे मान लो 35 है, ठीक है, एक 6 है, एक 25 है, एक 21 है, कौन सा जो इनमें से कौन सा ऐसा है जो इन जी का ऑर्डर नहीं हो सकता, मतलब ऑर्डर ऑफ इन जी इनमें से क्या, कौन से वाला नहीं हो सकता। देखो क्यों, अब देखो इन जी को डील करने की बजाय हम क्या करेंगे, हमें पता है वी नो कि ऑर्डर ऑफ इन जी किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जेड ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जेड ऑफ जी, यही होता है। अब अगर ऑर्डर ऑफ, अब एक एक करके चलते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ जी 35 हुआ, अगर मान लो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जेड ऑफ जी 35 हुआ, तो मुझे पता 35 क्या है, 5 इंटू 7, 5 डज नॉट डिवाइड 7 माइनस 1। इसका मतलब दिस इज़ नथिंग बट आइसोमॉर्फिक टू जेड 35। जैसे ही ये 35 हुआ तो मुझे पता ये क्या है, साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक हुआ, हमें पता है जी अपॉन जेड जी जब साइक्लिक होता है, इसका मतलब जी क्या बन गया, एबिलियन। अगर जी एबिलियन है तो मुझे एक और रिजल्ट पता है, अगर जी एबिलियन है तो जेड ऑफ जी और जी बराबर होते हैं। अगर ये बराबर होते हैं तो जी अपॉन जेड ऑफ जी का रेशो कितना आना चाहिए, 1। पर रेशो देखो आ कितना आ रहा है, अब कितना 35। तो इसका मतलब 35 तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब 6, 25 और 21 पॉसिबल हो सकते हैं, क्यों 6 पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 6 ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप मिल जाता है हमें। 6 देखो 6 है, 25 है और दूसरा है 21। 6 पॉसिबल है क्योंकि 6 के 2 मिलते हैं, S3। तो साइक्लिक तो होने से रहा, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, बिल्कुल हो सकता है। वैसे ये पी स्केयर है तो ये आएगा, एक तो जेड पी स्केयर और दूसरा नॉन एबिलियन आता है, सॉरी नॉन एबिलियन नहीं बट हाँ नॉन एबिलियन आता है दूसरा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो ये हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तीसरा क्या है 21। तो 7 ही 21, अगेन ये 7 डज नॉट 3 डज नॉट डिवाइड 3 डिवाइड 7 माइनस 1, ठीक है 3 डिवाइड 7 माइनस 1। तो इसमें भी एक तो Z 21 होता और दूसरा एक नॉन एबिलियन ग्रुप होता है इसमें। तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि भाई बन जाएगा वो,
ठीक है। तो ओनली पॉसिबिलिटी जो नहीं होगी वो है 35, ओनली पॉसिबिलिटी जो है जो नहीं होगी वो होगी 35, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये यहाँ पे जेड पी क्रॉस जेड पी, ठीक है, पी स्केयर वाली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी अब देखो यहाँ से क्या पता चला हमें, देखो यहाँ से सेम रिजल्ट है, यहाँ से देखो अगर आप इसको आप खुद भी लिख सकते हो, इतने कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिजल्ट पता, ये होगा ई के बराबर कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ एबिलियन। क्या ये बताने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि इन जी मुझे पता ही है जी अपॉन जेड जी। अगर ये ई के बराबर है, ई मतलब Z1 मतलब साइक्लिक, जी अपॉन जेड जी साइक्लिक होता है, तो इस यहाँ से अप्लाई करते हैं जी क्या बन गया, एबिलियन। अगर जी एबिलियन बन गया तो अगेन जेड अपॉन जेड जी वन आ गया, तो दोनों तरफ से ट्रू है, ठीक है। इसलिए अगर ये है तो जी पक्का एबिलियन होगा, कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं आपके, ठीक है, विदाउट इवन गोइंग डीप इनटू इट कि क्या पूरी मैपिंग निकालना या ऐसा कुछ काम करना, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन और आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, इस टाइप में, जैसे जी या आपको Z2 क्रॉस Z6 फाइंड, क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड ऑर्डर ऑफ एन ऑफ जी। अगर मान लो अब आप और निकालने लग पड़े कि हाँ भाई कितनी मैपिंग्स होंगी, तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे पता है वी नो, क्या पता है आपको, कि जो एन ऑफ जी है ये होता है आइसोमॉर्फिक जी अपॉन जेड जी, ठीक है। तो जी कितना है, Z2 क्रॉस Z6, और ये एबिलियन ग्रुप है। अगर ये एबिलियन है तो मुझे पता है ये जेड ऑफ जी भी सेम ही आएगा। तो क्या आया, आइसोमॉर्फिक टू ई, एक ही आया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऑर्डर कितना होगा 1, क्लियर। तो ऐसे देखो कितना इसने आसान कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इन जी की बात करूँगा, किसी साइक्लिक ग्रुप की बात करूँगा, ठीक है, कोई भी साइक्लिक ग्रुप उठा लो आप, तो सभी के लिए क्या आएगा, एक ही आएगा उसका ऑर्डर, एक ही ऑर्डर आएगा ना। अब मान लो जो साइक्लिक नहीं है, जैसे इन ऑफ Q4 पूछ लिया उसने, तो मुझे पता ये होगा Q4 और सेंटर ऑफ Q4 यही होगा। Q4 का ऑर्डर कितना होता है 4, सेंटर का इसका 2, तो सॉरी Q4 का ऑर्डर 8 होता है, तो कितना आया 4, चार के दो पॉसिबल हैं, Z4 और Z2 क्रॉस Z2, सो दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू, ठीक है। सो दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू, ठीक है। ये हमें मिलता नहीं इस केस में, ये आता है Z2 क्रॉस Z2, ठीक है। क्यों, ये क्यों नहीं मिलेगा कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये पॉसिबल होता, साइक्लिक पॉसिबल होता, तो वही बन जाएगा जी अपॉन जेड, साइक्लिक अगेन वही चेन बनेगी, तो इसके 4 तो आने से रहा 1 आ जाएगा वो, तो ये पॉसिबल नहीं होता, एक ही पॉसिबल होता है। तो ऐसे कर सकते हैं, आसान कर दिया ना इसने। सेकंड देखो, अगर एक और पूछ लिया उसने, मान लो ऐसे पूछ लिया, बताओ भाई इसका क्या होता है, तो हमें पता है ये क्या आएगा, एस एन अपॉन सेंटर ऑफ एस एन, तो ये कुछ नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं आ जाएगा घूम के, ठीक है। अब इन जी ऑफ D5 पूछ लिया उसने, तो आइसोमॉर्फिक टू D5 सेंटर ऑफ D5, तो सेंटर ऑफ D5 एक ही एलिमेंट होता है, तो अगेन D5 ही आ गया आपके पास। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं आपके, ठीक है। नाउ कई बार ऐसे ही पूछ लेते, देखो हाउ मैनी इनर ऑटोमॉर्फिज्म आर देयर इन G इक्वल टू S3 क्रॉस D4, इसमें बताओ। तो वही सोल्यूशन कैसे करेंगे, मुझे पता है इन जी ऑफ जी निकालना है, तो क्या आएगा जी अपॉन जेड ऑफ जी, तो जी कितना है S3 इंटू D4, S3 इंटू D4। अब सेंटर में देखो, सेंटर ऑफ जी का, इसका सेंटर और इसके सेंटर, तो सेंटर ऑफ S3 में तो एक ही एलिमेंट होता है, तो एक ही आएगा, और सेंटर ऑफ D4 में 2 एलिमेंट होते हैं, तो 2 आएगा। तो टोटल ऑर्डर देखो कितना है 6 और ये 48 और डिवाइड बाई 2, तो कितने एलिमेंट्स आए 24 एलिमेंट आ गए, ठीक है। रैदर देन कैलकुलेटिंग एग्जैक्टली कौन से होंगे कितने होंगे, आप इस फॉर्मूले में देखो इसको, इसने कितनी हेल्प कर दी आपको, डायरेक्टली आपको कंप्यूट करके दे दिया, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, तो ऐसे लेंथी क्वेश्चन भी काफ़ी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन बन गए, ठीक है। नेक्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये शो करना दैट G1 इंटू E2 इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ
G1 क्रॉस G2, ये प्रूव करना कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, अब प्रूव कैसे करेंगे? पहले हमें पता है कि G1 G2 का एलिमेंट दिखता कैसे है। G1 क्रॉस G2 का एलिमेंट कैसे दिखता है? हमें हमेशा एक्स वाई टप्पल की फॉर्म में। एक्स कहाँ से आता है? G1 से। वाई कहाँ से आता है? G2 से। ऐसे ही है। अब G1 क्रॉस E2 का एलिमेंट कैसे दिखेगा? हमें पक्का ऐसे ऐसे कुछ दिखेगा, E2, और यहाँ x कहाँ से आ रहा है? G1 से। ठीक है, तो यहाँ हम यूज़ करते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या यूज़ करेंगे? हम करेंगे मैपिंग डिफाइन। डिफाइन क्या डिफाइन करेंगे? हम 1 1 ऑन 2 बता देंगे। डिफाइन कर देंगे हम कैसे? f फ्रॉम, ये अच्छा तरीका है, आपने ये भी ध्यान रखना है। ये डिफाइन कर दिया आपने G2 पे लेके। क्यों G2 पे लेके गए वो भी देखते हैं। देखो f ऑफ क्या है? x y को मैप कर दिया इसने y पे। ठीक है, x y को मैप कर दिया इसने किस पे? y पे। ये मैपिंग है मेरी। अब ये ऑन टू मैपिंग है। पहले तो होमोमॉर्फिज्म है, बिल्कुल है। इज इट होमोमॉर्फिज्म? ठीक है, सॉरी, हमने क्या बताना है? हाँ ठीक है, ये मैपिंग डिफाइन कर दी आपने। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसको, इस पोर्शन को हम करते हैं क्योंकि इससे इससे कुछ और रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हम वो भी कर सकते हैं, तो इससे कुछ और रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम डील करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं नॉर्मल बताने के लिए। नॉर्मल था ना हमारा क्वेश्चन था, इसको हमने बताना कि ये नॉर्मल है। इसको मैं थोड़ी देर हॉल्ट पे रखता हूँ। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा कवर करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, बस इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो देखो इसको मैंने क्या प्रूव करना है, ये कैसा है? नॉर्मल सब ग्रुप इसका। नॉर्मल के लिए क्या करते हैं कि एक एलिमेंट उठाते हैं। इसका कोई एक एलिमेंट उठाऊंगा मैं, मान लो मैंने उठा लिया एलिमेंट एक्स। ठीक है, ये इसको एच नाम देते हैं। ठीक है, इसका मैंने कोई एलिमेंट उठा लिया एच। क्या उठा लिया? एच उठा लिया। इसका एलिमेंट मैंने कोई उठा लिया एच। और एक एलिमेंट उठाते हैं यहाँ से G1 क्रॉस G2 से, मान लो इसको नाम एक्स दे दिया। तो क्या करते हैं हम, ये शो करना होता है एक्स एच एक्स इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए G1 क्रॉस E2 में। अगर ये बात बन गई तो ये वाला नॉर्मल हो जाएगा, फिर नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा G1 क्रॉस G2 का। ठीक है, अब मैंने एच कहाँ से लिए? देखो एक्स कहाँ से आ रहा है? एक्स आ रहा है G1 क्रॉस G2 से। एच कहाँ से आ रहा है? एच आ रहा है यहाँ से। तो देखो लिखते हैं G1 क्रॉस G2 से आ रहा है तो कैसा होगा? x1 x y1। G2 से आ रहा है, एक्स ले लिया ने। एच कहाँ से आ रहा है? G1 क्रॉस E2 से। तो ये कैसा होगा? कुछ x, इसको चेंज ही कर दो, x1 y1। ठीक है, और ये कितना होगा? अगर एच जो है G1 क्रॉस E2 से आ रहा है, ये कैसा होगा? x2 E2, और इसका x1 इनवर्स y1 इनवर्स, ऐसे होगा। अब इसको कर दो, कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन? कैसे होती है? ऐसे चलती है। तो क्या आएगा? x1 x2। ठीक है, सॉरी, हाँ, कैसे आएगी? x1 x2। ठीक है, लेट मी नेम दिस एज h। ठीक है, ताकि हमें डिस्टिंक्शन रहे कि ये किसका एलिमेंट है? G1 क्रॉस G2 का है ना, तो इसलिए मैं इसको जस्ट h लिखता हूँ। ठीक है, h। तो क्या आएगा? x1 h x1 इनवर्स, और ये आएगा y1 E2 y2 इनवर्स। ठीक, अब इसको तो ऐसे रखो x1 h x1 इनवर्स। ये कितना आएगा? देखो E2 का फर्क तो पड़ेगा, y1 y2 भी G2 को बिलोंग कर रहे हैं, तो y1 और y2 इनवर्स y1 इनवर्स है ना, y1 इनवर्स। तो क्या ये भी आइडेंटिटी बनेगा? तो ये किसकी एलिमेंट है? ये किसका एलिमेंट? देखो शक्ल देखो इसकी कैसी बन रही है। यहाँ एक एलिमेंट और यहाँ E2 है। किसका एलिमेंट है? ये बिलोंग नहीं कर रहा G1 क्रॉस E2 को, क्योंकि x1 किसका एलिमेंट है? G1 का। x इनवर्स भी किसका होगा? G1 का। और h तो है ही G1 का। तो ये तीनों अगर ग्रुप हैं तो आपके पास ग्रुप तो है ही ना वो अल्टीमेटली, तो वो किसका एलिमेंट बनेगा? G1 का। तो ये किसको बिलोंग कर गया? G1 को। इसका मतलब जो ये है आपका, ये सारा किसको बिलोंग कर गया? G1 क्रॉस E को। इसका मतलब जो ये है आपका, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। सिमिलरली यू कैन डू फॉर E1 क्रॉस G2, दिस विल बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये रिजल्ट हमने यहाँ से प्रूव किया। अब देखो इसका क्या फ़ायदा होता है, नॉर्मल ग्रुप का क्या फ़ायदा होता है। नॉर्मल ग्रुप का आपको पता है कि अगर
जब भी फैक्टर ग्रुप की बात करते हैं तो आपको जो नीचे वाला ग्रुप है वो नॉर्मल होना चाहिए, ऐसी ही बात है ना। अब कई बार पूछता है कि शो दैट, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है, देखो यहाँ आपको हेल्प होगी, कई बार पूछता है शो दैट G1 क्रॉस G2 और G1 क्रॉस E2 इज़ आइसोमॉर्फिक टू G2, कैसे प्रूव करना वो है, प्रूफ कैसे करना है। तो यहाँ हम करते हैं कि डिफाइन मैप कैसे डिफाइन करते हैं, G1 क्रॉस G2 और G2 पे मैप डिफाइन करते हैं। किस पे मैप डिफाइन कर दी मैंने, G2 पे, ठीक है। कैसे डिफाइन करी, एफ ऑफ, ये जो अभी ऊपर हमने प्रूफ शुरू किया था, एक्स वाई जो है किस पे जा रहा है, वाई, ठीक है। अब ये होमोमॉर्फिज्म है, क्यों है होमोमॉर्फिज्म, आप देख लो, एफ ऑफ दो एलिमेंट उठा लो, x1 y1 x2 y2, क्या आना चाहिए, एफ ऑफ x1 x2 y1 y2, तो ये किसके बराबर आएगा, y1 y2, y1 का मतलब एफ ऑफ x1 y1 और एफ y2 का मतलब एफ ऑफ x y2। तो आगे होमोमॉर्फिज्म में दो एलिमेंट लिए, एफ ऑफ एक्स वाई को एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आ गया, होमोमॉर्फिज्म तो हो गया। अब ये ऑन टू भी है, ऑन टू क्यों है, देखो, फॉर ईच y बिलोंग्स टू G2 देयर एग्जिस्ट, पक्का पीछे आपको एक एक्स वाई मिलेगा, बिलोंग्स टू कहाँ, G1 क्रॉस G2, कि जब आप इस पर फंक्शन अप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू देगा, y, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ऑन टू। आप लगा दो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। और इससे पहले एक और चीज़ निकालो, आप कर्नल निकाल लो, कर्नल ऑफ एफ कितना आएगा, इसमें क्या आता है, इसमें सारे वो एक्स बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2 आएंगे, कैपिटल एक्स लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टप्पल होगा, ठीक है। सच दैट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो क्या वैल्यू देगा, आइडेंटिटी किसकी, E2 की आएगी, क्योंकि G2 पे जा रहे हैं हम, ठीक है। और ये टप्पल है, ये एक्स क्या है, टप्पल है, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है वाई इक्वल टू E2, टप्पल मतलब ये कुछ ऐसे होगा, एक्स वाई, इसका मतलब है मेरे पास कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स और E2, और यहाँ एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, G1 को, जैसे मैंने सॉल्व किया यही आया। इसका क्या मतलब है, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कैन बी G1 और ये E2, ठीक है, ऐसे आएंगे टप्पल्स, ठीक है। इसका मतलब कर्नल आपका आ गया ये। अब लगा दो FTH आप, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कि G1 क्रॉस G2 और डिवाइड बाई कर्नल, कर्नल क्या है, ये आइसोमॉर्फिक होगा इमेज ऑफ फाई, इमेज ऑफ फाई क्योंकि ऑन टू है, ऑन टू है, ऑन टू का मतलब क्या है कि एफ फाई ऑफ G1 क्रॉस, या इमेज ऑफ G1 क्रॉस G2 किसके बराबर होगा, G2 के, तो ये किसके बराबर है, G2 का, तो यहाँ से हमें प्रूफ मिल गया, ठीक है। तो ये मैपिंग इंपॉर्टेंट है, ये E2 है, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हो, G1 क्रॉस G2 E1 G2 इज़ आइसोमॉर्फिक टू G1, ठीक है, वहाँ एक्स पे मैप करवा दो, ठीक है, कर सकते हो ये, ठीक है। तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएँ तो आपने ये डील करने आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब इसी की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कुछ ऐसे आ जाती है, जैसे ये पूछ लिया उसने Z4 और ये यहाँ पे R0, तो मुझे पता है दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू नथिंग बट D6, ठीक है। या फिर ये पूछ लिया Z4 D6 और यहाँ उसने पूछ लिया, यहाँ आइडेंटिटी 0 है, यहाँ उसने दे दिया आपके पास D6, तो दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z4, ठीक है। तो एनालिसिस काफ़ी आसान होगी अगर हमें ये फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ आपने जो ध्यान रखनी है वो ये कि G1 क्रॉस G2 दिस इज़ आइसोमॉर्फिक टू G2 क्रॉस G1, ठीक है। दैट इज़ अगर आप Z2 क्रॉस Z4 ले लो, दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z4 क्रॉस Z2, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी लिख लो आप। और कैसे आसान है करना, आप मैपिंग ले लो G1 क्रॉस G2 टू G2 क्रॉस G1, और कैसे डिफाइन कर दिया, यहाँ एक्स वाई है, इसको ले जाओ वाई एक्स पे। अब ये होमोमॉर्फिज्म है, बिल्कुल है, 1 1 है, ऑन टू है, बिल्कुल है। तो जैसे 1 1 ऑन टू होता है आपके पास, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं, ठीक है, सेम हो जाते हैं। तो आप जैसे मुझे ऑल्टरनेट कर सकते हो, दिख भी रहा है वो होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है, ऑन टू है, कोई इसमें कुछ दो राय नहीं करने को, ठीक है, कर सकते हो।
ठीक है, ट्राई करना है, अगर स्टिल अगर आपको नहीं पता लगा देन लेट मी नो, ठीक है, वी विल कवर, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद एक और दो रिज़ल्ट जो हम देखो, मैपिंग्स भी काफ़ी हेल्प करती है आपको बताने के लिए। हमने ये स्टार्टिंग में लिखा था कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू जेड। कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लो तो इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू जेड, ठीक है। ग्रुप जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू जेड, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूँ कि जी मेरे पास, अगर मैं बात करूँ कि जी मेरे पास कैसा ग्रुप है, इनफाइनाइट है प्लस साइक्लिक है, तो पक्का ये आइसोमॉर्फिक टू जेड होगा। अब प्रूव कैसे करना है, तो प्रूव हम करते हैं मैपिंग से। मान लो ये कोई मैपिंग ले ली मैंने, जेड से जेड मैपिंग ले ली। अब जी क्या है, फाइनाइट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, फाइनाइट प्लस साइक्लिक। इसका मतलब पक्का जी किसी से जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे होगा, ए रेज़ टू पावर -2, ए रेज़ टू -1, ए रेज़ टू पावर 0, A1 A2, ऐसे कुछ होगा, पक्की बात है। मैंने मैपिंग डिफाइन कर दी कैसे, एफ ऑफ ए रेज़ टू पावर आर टू आर, ये मेरी मैपिंग डिफाइन कर दी मैंने, ठीक है। फंक्शन कहाँ से कहाँ है, जी टू जेड, तो ये डिफाइन कर दी। अब मुझे बस ये बताना कि 1 1 ऑन होमोमॉर्फिज्म है और 1 1 ऑन 2 है। होमोमॉर्फिज्म है बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि देखो एफ ऑफ दो एलिमेंट उठाने मैंने, एक्स वाई उठा लिए मैंने, तो एक्स कैसा होगा, ए की कुछ फॉर्म, वाई कैसा होगा, ए की कुछ पावर, तो एक्स आ गया मान लो ए रेज़ टू पावर एन, और वाई आ गया ए रेज़ टू पावर एम, तो कितना है, एफ और ए रेज़ टू पावर एन प्लस एन, यही आएगा। इसका मतलब जो फंक्शन आप जो फंक्शन दिया वो लगाओगे तो एक वैल्यू आएगी एम प्लस एन, और एम क्या है, इट इज़ नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। स्टार्ट कहाँ से किया था आपने, एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई। अब आपको ये यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ प्लस आ गया यहाँ डॉट है, क्यों, क्योंकि एफ जो था मैपिंग थी जी टू जेड, ठीक है। तो जेड में देखो, जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा आपको यहाँ से अगर याद दिलाऊँ तो मैं डेफिनेशन में ऐसे लिखते हैं, यहाँ मान लो यहाँ प्लस ऑपरेशन है, ये वाला ऐसे ऑपरेशन है, और यहाँ मान लो कोई दूसरा ग्रुप था जी, और यहाँ जी डैश, और यहाँ मान लो ये ऑपरेशन है, ये तो हम ये डिफाइन कर देते एफ ऑफ एक्स, यहाँ लगेगा इसका ऑपरेशन, और जब यहाँ सॉल्व करके आएगा तो यहाँ बीच में कौन सा ऑपरेशन होगा, जो इस तरफ लगा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे जी पे मल्टीप्लिकेशन वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला लगाया। जेड पे कौन सा ऑपरेशन होता है, प्लस वाला, इसलिए यहाँ पे प्लस वाला ऑपरेशन है। सो दैट इज़ टोटली फाइन। तो इसका मतलब है यहाँ से क्या प्रूव हुआ, यहाँ से प्रूव हुआ कि ये होमोमॉर्फिज्म है। अब 1 1 ऑन 2 तो दिख ही रही है, कैसे, आप ऐसे ले लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एक्स क्या होगा, ए रेज़ टू पावर एन, ये क्या होगा, ए रेज़ टू पावर एम, तो एन इक्वल टू एम आ गया, एन इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू वाई निकालना, तो ए रेज़ टू पावर एन क्या है, ए रेज़ टू पावर, ठीक है, ये आ गया। तो एफ ऑफ ये आ गया, एफ ऑफ ए रेज़ टू पावर एन, एफ ऑफ एक्स और वाई की शक्ल कुछ ऐसी होगी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एफ ऑफ ए रेज़ टू पावर एन एम या ए रेज़ टू पावर एम, ऐसे है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्या आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए एक्स इक्वल्स टू वाई, एक्स इक्वल्स टू वाई ये आना चाहिए, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसके बाद, यहाँ से क्या है, यहाँ से आया, अगर मैं फंक्शन लगा दूँ, ये ऐसे करे, अगर मान लो मैं फंक्शन अप्लाई कर दूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा, तो ये आएगा n और ये आएगा m, ठीक है। ये क्या आएगा, n और ये आएगा m, ठीक है। नाउ
ठीक है, लेट मी जस्ट थिंक। अगर यहाँ से हम फंक्शन लगा दें तो ये आएगा n और ये आएगा m। ठीक है, तो क्या किया हमने, फंक्शन क्या है मेरे पास, हम्म, 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 ठीक है, यहाँ से ऐसे आएगा। अब देयरफॉर यहाँ से हम क्या क्लेम कर सकते हैं, अगर डेफिनेशन लगाएं हम किसकी, अगर यहाँ से डेफिनेशन लगाएं तो डेफिनेशन से क्या आएगा, डेफिनेशन से ये आएगा देयरफॉर, हाँ देयरफॉर ये आएगा यहाँ से कि ए रिस्ट पावर n इक्वल टू ए रिस्ट पावर ए रिस्ट पावर n इक्वल्स टू ए रिस्ट पावर m, दिस इम्प्लाइज m इज़ इक्वल्स टू n। ठीक है, या फिर अगर हम एक और चीज़ ट्राई करें, हम कर्नल से जाने की कोशिश करते हैं, कर्नल ऑफ f। अगर कर्नल में हमें पता 1 शो करते तो कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी जाता है। तो अगर कर्नल की बात करें तो कर्नल में क्या जाएगा, वो सारे x बिलोंग्स टू g सच दैट f ऑफ x जो है वो आइडेंटिटी पे आना चाहिए, मतलब 0 पे जाना चाहिए कि z की आइडेंटिटी 0 है। तो f ऑफ x कितना आएगा, ए रिस्ट पावर m इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज ज़ीरो मतलब आइडेंटिटी है ना इसकी, इसका मतलब n क्या है, 0। ठीक है, इसका मतलब n क्या है, मतलब ए रिस्ट पावर n है इक्वल्स टू ए रिस्ट पावर 0 इज इक्वल्स टू ई आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कौन से एक्स सेटिस्फाई करें, इसका मतलब सिर्फ इसमें क्या आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है। तो जब भी आइडेंटिटी आती है तो हम कहते हैं कि फाई जो भी आपका फंक्शन है वो क्या है, 1 1। ठीक है, और कोई तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, और कोई तो पॉसिबल है नहीं इस केस में, है ना, फाई ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे होगा ना, इसको ऐसे कर लो, फाई ऑफ एक्स मतलब फाई ऑफ ये कुछ होगा ए रेज़ पावर m इक्वल टू 0। और जब फंक्शन लगाओगे तो क्या आएगा जब फंक्शन लगाओगे तो क्या आएगा, m इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, और x कितना था, हाँ ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स सच दैट इस, ठीक है, ये आ गया m 0 आ गया। ठीक है, और m 0 आ गया था तो हमारे पास x क्या है, x है a रेज़ पावर m 0 आ गया तो क्या बचा, सिर्फ एक आइडेंटिटी आया। तो इसका मतलब कर्नल ऑफ f में सिर्फ एक एलिमेंट आया, दैट इज़ e। क्लियर, तो आप कर्नल से भी इजी अप्रोच है कर्नल से करना। कैसे किया हमने, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको कैसे किया। कर्नल में, ठीक है, इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे g के सच दैट f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 0। 0 किसका एलिमेंट है, z का। देखो ये हमें ध्यान रखना कि मैपिंग g टू z है, यहाँ आइडेंटिटी 0 है, यहाँ आइडेंटिटी e है। ठीक है, अब x जो है g का एलिमेंट है, g साइक्लिक है, तो पक्का x कुछ a रेस्ट पावर m की फॉर्म में होगा। तो f ऑफ a रेस्ट पावर m इक्वल टू 0। अब फंक्शन की डिफाइनिंग देखोगे आप तो हम a रेस्ट, इसको कहाँ भेजेंगे, इसको हम भेजेंगे m पे।
इसका मतलब m की वैल्यू 0 होगी। अगर m 0 हो गया तो x किस फॉर्म में था, x इस फॉर्म में था, इस ऐसे फॉर्म का था, इसका मतलब m 0 हो गया। तो x क्या है, x a रेज़ पावर m है ना, तो ये कितना है, जब m 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ क्या बचेगा, आइडेंटिटी। तो जब भी कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो हम कहते हैं कि जो f है आपका वो है 1 1, वो क्या है 1 1। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या करना है आपने, ऑन टू के लिए तो क्लियर है कैसे, फॉर ईच n बिलोंग्स टू, कोई भी इंटीजर उठा लो आप, ठीक है, कोई भी इंटीजर उठा लो, देयर एग्जिस्ट सम x is equals to a raised to power n such that f(x) which is equal to f a raised to power n is equals to n। इसका मतलब ऑन टू भी है, ठीक है, इसलिए क्या है, ऑन टू भी है। ठीक, अगर ये दो चीज़ें मिल रही हैं तो हमें ये 1 1 है, ऑन टू है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि g जो है वो क्या है, आइसोमॉर्फिक टू z, g जो है आइसोमॉर्फिक टू z। तो ऐसे हमने शो करना है। ठीक है, वैसे ही अगर आप दूसरे के लिए बता सकते हो कि अगर जी आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n, देन दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू Zn। इसके लिए भी कर सकते हो आप सेम। ठीक है, कैसे करेंगे, वही सेम अप्रोच लगा दो आप इसमें भी। ठीक है, अगर इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहो जैसे उसमें किया, उस पर भी कर सकते थे, इसमें आप ऐसे कर लो, f ऑफ Zn टू g। कैसे डिफाइन किया, यहाँ से एक एलिमेंट उठाया, ठीक है, उस ऊपर वाले में भी कर सकते हो, f और यहाँ से एक एलिमेंट r उठाया, इसको मैप कर दिया a रेज़ टू पावर, क्योंकि r क्या है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो मान लो a से जनरेट हो रहा है तो मैंने इसको ऐसे भेज दिया, r को z r पे भेज दिया, कर सकता हूँ ऐसे, होमोमॉर्फिज्म है ये। f ऑफ r1 प्लस r2 करूँगा तो क्या आएगा, a ऑफ r1 प्लस r2, a ऑफ r1 a ऑफ r2, a ऑफ r1 कितना आएगा, f ऑफ r1 f ऑफ r2। होमोमॉर्फिज्म है, बिल्कुल है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म क्लेम कर दिया, 1 1 है, बिल्कुल है। 1 1 कैसे क्लेम होगा, क्या फंक्शन है आपका, फाई ऑफ आर, तो मैंने दो फंक्शन लिए, एफ ऑफ r1 इज इक्वल टू एफ ऑफ r2। अगर f1 ऑफ r1 तो ये क्या है, a रेज़ टू पावर r1 इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर r2। ये कब बराबर होंगे, अगर r1 इक्वल टू क्या है r2, आसान हो गया बताना, 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हमें पता है फॉर ईच x बिलोंग्स टू g, ठीक है, फॉर ईच, यहाँ के लिए, यहाँ के हर एलिमेंट के लिए आप ऐसे कर लो, जैसे फॉर ईच a raised to power r belongs to g, there exists an r belongs to z such that zn such that f of r is equals to a raised to power r। ठीक है, या फिर इसको अगर ऐसे लिखना तो ऐसे लिखो, फॉर ईच x belongs to g, there exists n belongs to ये x, there exists some small n belongs to capital N Zn such that f of n is equals to x, और f of n क्या है, a raised to power n is equals to x। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे बता सकते हैं। इसका मतलब f1 1 ऑन टू है, इसका मतलब g इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। ठीक है, ऐसे शो करेंगे कि g इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। ठीक है, now let's move to the next topic which is external direct प्रोडक्ट। ओके, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम देखो, हम ये वाले ग्रुप करके आए हैं, देखो अभी क्रॉस प्रोडक्ट वाले G1 क्रॉस G2। ठीक है, ये करके आए, इसमें हम क्या बोलते हैं कि मान लो जी आईज क्या है, कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, हमारे पास। ठीक है, तो हम जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है उसको हम ऐसे लिखते हैं G1, नोटेशन ही ये है G2 अप टू सो ऑन टू प्लस Gn। ठीक
ठीक है, ये है नोटेशन। और इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, अब अगर लिख तो दिया मैंने इसको, तो डिफ़ाइन कैसे करते हैं, डिफ़ाइन इसको करते हैं जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट वाले को किया था, G1 G2 Gn। यहाँ Gi किसको बिलोंग कर रहा है, Gi बिलोंग्स टू कैपिटल Gi फॉर ईच I, फॉर ईच I बिलोंग्स टू 1 to n। ठीक है, अगर G1 है तो वो कैपिटल G1 को कर रहा है, G2 तो कैपिटल G2 को, ऐसे है। ठीक है, और अगर मान लो दो एलिमेंट लेता हूँ मैं, x और y एलिमेंट लेता हूँ किसके, इसके साथ G1 डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऐसे से प्लस Gn, इसके मान लो दो एलिमेंट लेता हूँ, तो दो एलिमेंट लेता हूँ तो इन दोनों का जो ऑपरेशन लगेगा वो कैसे लगेगा, अगर x इसको बिलोंग कर रहा है तो x उसकी शक्ल कैसी होगी, G1 G2 Gn। x2 एलिमेंट लेंगे तो उसकी शक्ल जी कैसी होगी, G1 डैश G2 डैश Gn डैश। तो इन दोनों को अगर आपस में ऑपरेशन कैसे लगाना है, आप क्या करो, टर्म वाइज मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये लास्ट में इसके साथ। तो मतलब G1 डैश G2 G2 डैश Gn डैश। तो ये बनेगा प्रोडक्ट ऑपरेशन, ये बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको कहते हो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ ये हमने पहले किया था। देखो जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखो इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो देखो हमने मान लो x मैंने उठा लिया एक एलिमेंट 2 एंड एक R90 उठा लिया, किसका, Z6 का एलिमेंट 2 है, बिल्कुल है, और क्रॉस जो D4 का एलिमेंट है वो R90 है। ठीक है, y एक एलिमेंट उठा लिया 1 इसका, बिल्कुल ठीक है, और मैं एक एलिमेंट उठा लिया h। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लिप जो होती है वो उठा ली Z2 क्रॉस D4 की। ठीक है, Z6 क्रॉस Z6 की, Z6 क्रॉस Z4 की। अब x डॉट वाई क्या आएगा, 2, और ये आएगा R90 और h। ठीक है, सॉरी x स्टार y। ठीक है, x स्टार y। अब देखो इसमें कौन सा देखो ऑपरेशन का ध्यान रखना है हमेशा, इसमें कौन सा ऑपरेशन चलता है हमारा, इसमें चलता है ऑपरेशन का एडिशन वाला। ठीक है, ये एडिशन है ऐसे, और इसमें इसमें ऑपरेशन चलता है कंपोजिशन वाला। तो वो ध्यान रखना है हमने, जब इन दोनों का बीच में हमने ये लगाया निशान, इसका मतलब x वाला x वाले के साथ जाएगा, पर ऑपरेशन का ध्यान रखना है। जैसे इसमें आएगा 2 + 1, इसमें Z6 वाला ऑपरेशन लग गया। ठीक है, और इसमें आएगा R90 और h कंपोजिशन वाला। तो ये कितना आया 3, और R90 होता है ये देखो R0 है, ये A B C D, ये है आपका R0, R90 है आपका ये 90 से इसको फ्लिप कर दो तो आपके पास ये D आएगा, ये A आएगा, ये B आएगा, ये C, ये है आपका R90। अब इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप देनी है आपने, ये जब इसको आपने हॉरिजॉन्टल फ्लिप दी तो आपके पास ये बन गया, ये वाला क्या बन गया, C B और A और D, ये बन गया। और ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट D डैश, दिस इज़ नथिंग बट D डैश, मतलब इस डायगोनल के क्रॉस, इस डायगोनल के क्रॉस फ्लिप, ये है आपका D डैश। तो ये बन गया आपका D डैश, ये बन गया D डैश। ठीक है, तो ये आएगा x स्टार y। तो ये ध्यान रखना, ऑपरेशन में गलती हो जाती है कई बार, तो ये ध्यान रखना किसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो आप। ठीक है, उसमें एलिमेंट्स में कैसे ऑपरेशन लगेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिजल्ट है, एक हम रिजल्ट पहले क्रॉस में करके आए कि अगर G1 G2 एबिलियन है तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है कि G1 एंड G2 भी क्या होंगे, एबिलियन। ये हम करके आए। ठीक है, और ये भी करके आए कि अगर G1 G2 साइक्लिक होंगे। अब देखो ये एबिलियन वाला करके आए हम। ठीक है, अब सेकंड है, ये तो हम ये भी करके आए कि अगर G1 क्रॉस G2 साइक्लिक हैं, G1 क्रॉस G2 साइक्लिक हैं, सॉरी अगर G1 एंड G2 साइक्लिक हैं तो दिस डज नॉट इम्प्लाई कि G1 क्रॉस G2 भी साइक्लिक होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसका देखो, इसको मैं ले लूँ Z2 ले लूँ,
इसी को देखो, इसको भी सेम Z2 ले लूँ तो Z2 क्रॉस Z2 और Z2 दोनों कैसे साइक्लिक हैं, बट अगर Z2 क्रॉस Z2 की बात करूँ तो ये तो साइक्लिक है ही नहीं। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल जो आप मतलब इसमें जो हमने किया है क्रॉस वाले में। ठीक है ना, ये भी हमने किया था। ठीक है, रिजल्ट बस हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं कि अगर G1 और G2 कैसे हैं, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर M एंड N। ठीक है, देन G1 क्रॉस G2 साइक्लिक होगा। कब साइक्लिक होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ M N का GCD 1 है तो तभी पॉसिबल है। ये हमने क्वेश्चंस किए भी हैं पहले कि Z2 क्रॉस Z3। अभी हमने बोला कि देखो अगर Z2 साइक्लिक है Z3 साइक्लिक है सेपरेटली तो ज़रूरी नहीं ये साइक्लिक हो, बट ये साइक्लिक होता है कब, जब ये जो है आपको इनका GCD कितना हो, 1 हो। अगर इसका और इसका GCD निकालो तो वो 1 आए तब हम कहेंगे कि आपके पास ये साइक्लिक है। दैट मीन्स Z6 इज़ आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z3, तब ये ट्रू है, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि क्या Q प्लस इज़ आइसोमॉर्फिक टू Z प्लस, क्या ये आइसोमॉर्फिक है? साइक्लिक है नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये साइक्लिक है पर दिस इज़ नॉट साइक्लिक। क्यों साइक्लिक नहीं है? हमने आपको जो याद होगा हमने Q बाई Z किया था, Q बाई Z किया था हमने, है नॉट साइक्लिक। हमें बोला था अगर Q साइक्लिक है देन उसका फैक्टर ग्रुप भी साइक्लिक होता है। ठीक है, पर ये अगर नॉट साइक्लिक है तो ये भी नॉन साइक्लिक होगा, है ना। रिजल्ट किया था हमने वहाँ पे, हमने ऐसे किया था अगर Q साइक्लिक होता, नहीं सॉरी ऐसे कहते, अगर G साइक्लिक है तो हमने रिजल्ट किया था कि G/H जो उसका फैक्टर ग्रुप होता है वो भी क्या होता है, साइक्लिक। तो P इम्प्लाइज Q, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। अगर ये नॉन साइक्लिक है, ये आपका अगर नॉन साइक्लिक है तो ये इम्प्लाई करेगा G भी क्या है, नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला था कि Q बाई Z, क्योंकि Q बाई Z वाज नॉन साइक्लिक, इससे पता लगा हमें कि Q भी क्या है, नॉन साइक्लिक। अगर Q नॉन साइक्लिक है तो हमें ये देखो ये दोनों आइसोमॉर्फिक तो होने से रहे ना, क्योंकि ये तो साइक्लिक है बट दिस इज़ नॉट साइक्लिक। अगेन आप RZ के साथ देख लो, RZ इज़ नॉट, अगेन क्योंकि वहीं से हमने प्रूव किया था ये चीज़ें कि ये भी साइक्लिक नहीं है, और तो इसका मतलब ये भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। ठीक है, ना ही C वाला हो सकता है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या Q प्लस वाला आइसोमॉर्फिक है Q स्टार और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ ये है, तो यहाँ भी ये भी ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि Q स्टार के पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है, -1 मिलता है इसके पास पर इसके पास कोई एलिमेंट मिलता ही नहीं 2 ऑर्डर का। ठीक है, तो ये वहाँ से भी कर सकते हैं आप। तो ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आप इसमें भी देख सकते हैं Z प्लस ये साइक्लिक है, दिस इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z स्टार डॉट। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है पर यहाँ तो मिलता ही नहीं, यहाँ तो एक ही एलिमेंट मिलता है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट्स हम आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास कि MZ इज़ आइसोमॉर्फिक टू NZ और N ग्रेटर देन 0 है और M ग्रेटर देन 0। क्या ये दो आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं? ठीक, अब देखते हैं क्यों। अगर इफ़ M ग्रेटर देन 0 देन पक्की बात है कि जो ऑर्डर ऑफ MZ होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट। ना मुझे ये तो पता है कि MZ जो है वो सब ग्रुप तो है, इज़ अ सब ग्रुप
ऑफ जेड, और अगर जेड साइक्लिक है तो सब ग्रुप क्या होंगे, साइक्लिक। इसका मतलब ये साइक्लिक भी है, एम जेड इज साइक्लिक। इनफाइनाइट ग्रुप प्लस साइक्लिक, तो इसका मतलब कि एम जेड जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा जेड के। वैसे ही एन जेड के लिए भी आप ड्रॉ कर सकते हो सेम चीज़। तो इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा कि एम जेड इज़ आइसोमॉर्फिक टू एन जेड। ठीक है, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो बस हमने जो रिजल्ट्स किए हैं उनकी हेल्प से हम ये निकाल पा रहे हैं, और ये तभी होगा अगर आपको पिछले लेक्चर्स क्लियर हैं कि क्या किया है हमने। ठीक है, अगर आपको आइडिया है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब ये कब पॉसिबल नहीं होगा, अब अगर हम ये लिखें, देखो इन जनरल लिखें, यहाँ हमें ये लिखना पड़ेगा कि एम और एन ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर क्या हम इन जनरल ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हो सकता है एम ज़ीरो हो। व्हाट इफ़ एम इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर एम ज़ीरो है फिर तो इशू हो गया, फिर तो ये तो ज़ीरो हो गया और ये तो फिर इनफाइनाइट चला गया, तो आइसोमॉर्फिक होने से रहे। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और हम एनालिसिस करते हैं, क्या D3 क्रॉस D4 इज़ आइसोमॉर्फिक टू D12, क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है, कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 6, इसका ऑर्डर कितना है 8, टोटल बना 48, इसका ऑर्डर कितना है 24, तो ये तो आइसोमॉर्फिक तो होने से रहे। ठीक है, तो ये चीज़ भी हट गई यहाँ से। ठीक है, नाउ अच्छा, अब इसी को थोड़ा अगर मैं अगर ऐसे लिख दूँ, अगर आप फिर आप ये पूछ सकते हैं कि भाई बताओ फिर D3 क्रॉस D4 इज़ आइसोमॉर्फिक टू D24, क्या ये हो सकता है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्यों। ठीक है, तो नो, आंसर इज़ नो। क्यों, क्योंकि आपके पास D24 के पास हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर कितना 24, बट D3 और D4 के पास, बट D3 क्रॉस D4 के पास, ठीक है, 12 से ऊपर कोई ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आइसोमॉर्फिक है तो मतलब वही है कि अगर दोनों में सेम प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए, तो ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी आइसोमॉर्फिक प्रूव करके ले आओ। ठीक है, या बता दो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया होता CSR में Z2 क्रॉस Z6 इज दिस आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस S3। अब कैसे हो जाएगा बताओ ज़रा, होने से रहा है, ये कैसा ग्रुप है, एबिलियन, ये कैसा नॉन एबिलियन, तो आइसोमॉर्फिक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी इशू यू कैन आस्क। ठीक है, ठीक है, और क्या रिजल्ट्स बना सकते हैं हम यहाँ से, देखते हैं। अब बनाते कोशिश करते हैं, अगर G1 एंड G2, ठीक है, G1 एंड G2, ठीक है, दो फाइनाइट ग्रुप है, कैसे ग्रुप है, टू फाइनाइट ग्रुप्स, और एंड ऑर्डर ऑफ G1 इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G2, अगर ये ऐसे है। ठीक है, देन ये एक चीज़ दी है। सेकंड, अगर मान लो दोनों G1 हैं, बोथ G1 एंड G2 साइक्लिक हैं, तब आइसोमॉर्फिक होंगे वो। हमें पता कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू Zn, तो ये भी फाइनाइट आइसो ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Zn, तो दोनों कैसे होंगे, G1 G2 दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, अदरवाइज तो नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ठीक है,
तो कभी भी जब आइसोमॉर्फिज्म की बात आती है कि हम वो ये बोलेंगे G1 इज़ आइसोमॉर्फिक टू G2, तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर इन दोनों में से अगर कोई भी आपके पास फेमिलियर है आपकी, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि Z4 इज़ दिस आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2, अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, तो मुझे किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। पहली चीज़ मुझे देखना है ऑर्डर, कि क्या ऑर्डर सेम, क्योंकि आइसोमॉर्फिक है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्या ऑर्डर सेम है कि नहीं। सेकंड, जो प्रॉपर्टी इस Z4 के पास है वही इसके पास होनी चाहिए। अगर इसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट है तो इसके पास भी होना चाहिए, पर इसके पास नहीं है तो आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, क्या ये देखो ये साइक्लिक है, क्या ये साइक्लिक है, नहीं, तो ये भी तो अगर आइसोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं तो जो प्रॉपर्टी एक ग्रुप होल्ड करता है वही दूसरा होल्ड करना चाहिए, तभी साइक्लिक, मतलब तभी हम बोल सकते हैं कि वो साइक्लिक है। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी बता दी आपने, जैसे मान लो इसमें भी, इसमें 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है, इसमें 2 ऑर्डर का एलिमेंट, इसमें आइडेंटिटी मिलती है, इसमें भी आइडेंटिटी मिलती है, उसका ऑर्डर 1 होता है, तो आइडेंटिटी में तो दोनों का ऑर्डर 1 होता है, बट ऑन दैट बेसिस यू कांट क्लेम। ठीक है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम ऐसे चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो एक में हो दूसरे में ना हो, ताकि हम ये इजीली क्लेम करते हैं कि वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, so let's stop here, okay, and then we will start our next lecture from conjugate elements. ठीक है, we will speed up now, okay, and we will cover these topics, conjugate elements, classes, okay, then we will try to reach to Sylow's theorem as soon as possible. ठीक है, and up to this, if you find any issues or if you find any problem in understanding the proof or any question, you can comment, okay, I will solve that query as soon as possible, and do watch other videos if there are something, because we have derived some of the results, okay, from the previous information that we have covered in the previous lectures. ठीक है, जो हमने पहले lectures में cover करी है, जो हमने पहले किए थे। ठीक है, तो यू मस्ट वॉच दोज वीडियोज़, तो ताकि आपको वो चीज़ें क्लेरिफाई हुएँ और उसके बाद आप आराम से खुद से आप रिजल्ट्स बना सकें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।